Good morning, students. I, Sushma Kataria from Suraj School, Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 8th class chapter. This is Jodie's Fawn, part 2nd of it. As you know that in our previous videos we have discussed about the starting portion of this chapter, in which we have discussed that Jodie's father was bitten by a snake and he killed a doe to save himself, and he used the liver and heart of that of the doe to that particular place where where he was bitten by a snake. Clear? And after the death of the doe, his little fawn left alone in the forest, and Jordies was thinking to take care of that fawn, and he take permission from his mother and father both. So let's start with this portion. So he was afraid to might kick and breathe the sight and smell of its mother. So actually, what happened in the last portion, we have discussed that he went to the forest and he was able to find the doe, वो the fawn उसको मिल जाता है, clear, and he tried to catch him. Okay, and he lifted him in his arm and start walking towards his home. But he don't want that his that fawn smell his mother, and he saw the dead body of the doe. So what he did, he chose the slightly different way to reach towards the house. Clear? So he struck the clearing bushes and put into way the thicket. जो दूसरे डायरेक्शन में जो और ज़्यादा गहरी झाड़ियाँ थी, he went out towards that direction and tried to clear his way. वो अपने रास्ते को क्लियर करता हुआ जा रहा था. The leg of that was कैच इन द बुशेज. उसके इवन जो उसकी जो पैर थे, जो फ़ोन के पैर थे, वो भी लटक रहे थे जैसे उसने उसको पिक किया हुआ था अपने लैप में. सो इट वॉज ऑल्सो स्टिक इन द bushes. He tried to slide his face from the prickling वो जो prickling bushes का मतलब होता है जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, उससे भी उसके जो फॉन है, लिटिल फॉन है, उसके चेहरे को बचाने की वो कोशिश कर रहा है. क्लियर? इट्स हैड बोर्डेड विद हिज साइड, मतलब उसके हेड को, उसके सिर को थोड़ा सा उसने छुपा के रखा हुआ था. द हर्ट थम दैट द मार्वल एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. सो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट द फाइनली ही वॉज एक्सेप्टिंग हिम. The fawn start accepting him because he was not doing that much kind of efforts to move away from his arms. So he reached the trail and walked at the fast as he could until he come to the intersection of road home. So what he did, वो बहुत जल्दी जल्दी जैसे जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, he walked very fastly. Okay, but because he want to get towards the road direction as soon as he can. Clear? So but he was being very exhausted. वो बहुत ज़्यादा थक जाता है. Reason क्योंकि he was lifting the deer in his arm. उसने अपने बाजुओं में डियर के मतलब फॉन को भी उठा रखा था, as well as the bush in the bushes it was difficult to walk. Clear? And being very heavy, वो he was just a teenager boy, so he got exhausted. बहुत ज़्यादा थक जाता है. Clear? And जब उसने थोड़ा सा आगे जाकर उसको हिरन को नीचे छोड़ दिया. ही ट्राइड. सो व्हाट ही डिड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट पुट हिम डाउन एंड ही जैसे वो उसकी तरफ देख रहा था, इन स्टार्ट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वॉइस. वो कुछ लुक्ड एट हिम एंड ब्लेयर्ड मतलब होता है कि आवाज़ें निकालना शुरू करना, रोने जैसा लगना शुरू हो जाता है. क्लियर? तो जॉडी उसको कहते हैं कि ओके वेट फॉर अ मिनट बिकॉज आई वांट टू कीप माई ब्रेथ. मुझे अपनी सांस ले लेने दो बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड. वो थक गया था बहुत. सो ही पुट द फोन डाउन. ओके. His father said that he remembered his father saying that fawn started after him. He came back to it and shocked and walked away again.
It looked for a few wobbling steps towards him and carried प्रिटिशियसली. सो व्हाट ही डिड, उसको एक फादर ने, उनके फादर ने उसको एक चीज़ बोली थी कि अगर एक बार जो फ़ोन है वो आपके हाथ में आ जाता है, आप उसको उठा लेते हैं, सो आफ्टर दैट व्हेन जब आप उसको नीचे छोड़ते हैं तो ही स्टार्ट फॉलोइंग यू. तो जो जॉडी है वो भी चलने स्टार्ट कर देता है. वो देखना चाहते थे कि वेदर इट्स हैपन और नॉट. सो ही स्टार्ट वॉबलिंग स्टेप्स, मतलब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है. एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंगली दैट द फोन स्टार्ट फॉलोइंग हिम. जो फ़ोन है वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है. ओके. सो हिज ओन ही वॉज लाइट हर्ट एंड विद जॉय. अब उसका जो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज ही एक्सेप्ट हिम एज दैट ही वॉज बिलोंग्स टू हिम. जो वो फ़ोन है उसको क्लियर हो जाता है कि उसको ऐसा देख कर लग रहा था दैट ही बिलोंग्स टू हिम. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल हिम. क्लियर. फॉन्डल इट, टू रन एंड रॉम्प विद इट. वो उसके साथ खेलना अब यहाँ पे जॉडी जो है वो जब वो ये सारी चीज़ें कर रहा था तो जॉडी के माइंड जो है वो फुल ऑफ जॉय हो जाता है. एंड ही वांट टू प्ले विद हिम. वो उछलना चाहता है झाड़ियों पे से, वो कूदना चाहता है, खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है. टू कॉल इट टू कम टू हिम. और वो उसको बोलना चाहता, जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो पीछे मुड़कर वो उसको कहता है कम टू मी. वो उसको अपनी तरफ बुलाता है. क्लियर. He dared him, not alarmed, to pick it up and carried it in front of him over his two arms. And he seemed that he walked without effort. और वो देखकर वो क्या करता था, जैसे वो बार बार उनको उठा लेता था, उसको बाजू में उठा लेता था, फिर उसको थोड़ी देर बाद नीचे छोड़ देता था, और जिससे जो फ़ोन है वो उसको पीछे पीछे उसको फॉलो करता था. एंड इसको देखकर लग रहा था कि दैट ही वॉज, उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे थे फ़ोन को अपने घर तक ले जाने के लिए. His arm began to ache and he was forced to stop again because he was a teenager. I said वो दोबारा थक जाता है. वो दोबारा when he walked on, the phone followed him at once. अगेन वो उसको फॉलो करने लग जाता है. ही अलाउड इट टू वॉक. अब जब जो जॉडी है उसने किया कि ओके ठीक है, इट्स बेटर टू मेक हिम वॉक. उसको थोड़ा सा चलने दिया जाए क्योंकि थोड़े से डिस्टेंस पे चलने देता है. देन ही पिक्ड अप इट अगेन. वो थोड़ा चल रहा था, फिर उसको गोदी उठा के फिर वो जॉडी चलने लग जाता था, फिर थोड़ा सा वो चलता था. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. यानी कि अब जो होम का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम रह गया था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड नाइट इन टू द नाइट carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, and but light breeze blew through the June morning, cooling him. So he was too exhausted. उसका जो पूरा जॉडी है वो पूरा पसीने से भीग जाता है क्योंकि जून की मॉर्निंग थी. लेकिन वो जो जून की मॉर्निंग है वो हवा लगने से उसके पसीने को जब आपकी बॉडी पूरी गीली हो जाती है पसीने से, उसके बाद जब वो हवा लगती है तो इट सीम्स वेरी कूल. बहुत ही ठंडक वाला फील उसको हो रहा था. द स्काई वॉज क्लियर एज द स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना. एक सिर्फ फ्रेज के तौर पे यूज़ किया गया कि जैसे ब्लू चाइना के कप में वो जो वाटर क्लियर नज़र आता है, सेम उसी तरीके जो स्काई था, इट वॉज वेरी क्लीन एंड क्लियर. ही केम टू द क्लियरिंग. ही वॉज फ्रेश एंड ग्रीन. एंड रात को बारिश होने के कारण जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा फ्रेश था और ग्रीन हो गया था. ओके. सो फाइनली obliged to set down and phone to manage it. He had an idea. He would walk into the house but at the steps the phone plugged मतलब रुक जाता है and refused to climb them. और वो जब सीढ़ियाँ आती है घर की तो वो चढ़ने से मना कर देता. दैट मीन्स ही स्टॉप ओवर देयर. एंड वो उस बार बार बोलने के बाद भी वो उसको क्लाइम नहीं कर रहा था, स्टेयर्स को क्लाइम नहीं कर रहा था. देन ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज फादर्स पेनीज एंड वो अपने फादर के पास उसको लेके जाता है. पेनी टर्न्ड हिज हेड. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. क्लियर. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. क्लच हार्ड मतलब इट वॉज वेरी क्लोज. वो बहुत अपनी बॉडी को सटा के जॉडी की बॉडी के साथ बिल्कुल सटा के खड़ा हुआ था, मतलब बिल्कुल वेरी क्लोज. दे आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज. इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन. दोनों की आंखें जो है वो एक साथ खुशी के लिए चमक रही थी. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. फादर सेड दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली यू फाउंड दैट फोन विच यू वांट. ओके. So Jody went to the kitchen, and now Jody went to the kitchen. The fawn wobbled after him. Wobbled मतलब पीछा करना, धीरे धीरे चलना. The
the pan of मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन टू द किचन एज लाइक जो मिल्क था वो मॉर्निंग पैन में, यानी कि जो बड़ा पतीला होता है उसमें इट वॉज सेफ. द क्रीम हैड रीजन ऑन इट, जो उसके ऊपर मलाई आ गई थी. सो व्हाट ही डिड, ही स्किम्ड द क्रीम. स्किम मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देना. द क्रीम इनटू अ जग. ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल ग्राउंड नहीं, मतलब उसको वो एक छोटे से प्याले में जो दूध है वो डालता है. ही हेल्ड इट आउट टू द फोन. वो किसके लिए? फोन के लिए. ही बटल द इट सडनली. ठीक है. स्मेलिंग द मिल्क. अब वो जो जैसे उसको दूध की स्मेल आती है, उस हिरन को, उस फोन को जैसे दूध की स्मेल आती है वो एकदम चौंक जाता है. वो जैसे कहते हैं ना, एकदम उसकी एक्टिविटी करने लग जाता है थोड़ी थोड़ी. ओके. सो ही सेव्ड एट प्रीशियसली फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द. और जैसे वो उसको एक टक्कर मारने की कोशिश करता है, जैसे उसको दूध की स्मेल आती है वो उसको टक्कर मारता है, लेकिन जो जॉडी है वो किसी तरह, स्पिलिंग मतलब बिखरने से रोकना. ओ ओके. he dipped his finger into the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth. अब वो क्या करता है, वो अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को उसमें डालता है दूध में और उसको उसके लिप्स पर लगाता है, उसको टच कराता है. एंड ही सक्ड ग्रीडली. और वो बहुत ही भूखे तरीके से, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जब भूखा होता है तो वो बहुत फटाफट फटाफट उसके हाथ के पूरे दूध को चाट लेता है. ओके. देन व्हेन ही विड्रॉ दैम, दोबारा से उनको उसमें डालता है. एंड बटेड हिम, दोबारा से उसको टच कराता है, दोबारा से उस बहुत अच्छे से अपने हाथ को उंगलियों को भिगो लेता है दूध में. एंड देन दोबारा से उसके लिप्स पे टच कराता है. सो एंड फिंगर अगेन. एंड उसके बाद क्या होता है, लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क एंड फ्यू एंड फॉन ब्लू. अब वो क्या कहते हैं, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से वो 2-3 बार उसको दूध पिलाता है. ठीक है. एंड सक्ड एंड स्नॉटेड. स्नॉटेड मतलब होता है कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी कर रहा है दूध को. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मेल हूफ इम्पेशेंटली. स्टैम्प्ड इट स्मेल हूफ्स. वो जैसे कहते हैं ना कि इम्पेशेंट होता है, बहुत ही जो जिसके अंदर कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, वो मतलब वो अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाता. जैसे वो दूध को नीचे रखता है, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज, बहुत ही इम्पेशेंट तरीके से, बेचैन होकर वो दूध को पीने लग जाता है. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल टू द मिल्क. और वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसकी फिंगर्स हैं उसके जो दूध का लेवल है वो नीचे 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 से चला जाता है. द फोन वॉज कंटेंट. अब फोन का जो पेट है वो भर गया है. इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमिंगली. अब वो जो फ़ोन है वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और उस ऐसा लगता है कि वो सपने ले रहा है, यानी कि वो सो जाता है जब उसका पेट भरता है. इट वॉज स्ट्रेसी टू फील. स्ट्रेस मतलब होता है कि बहुत ही संतुष्टि. टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. बहुत ही अच्छा लग रहा था जब वो हाथ से अजीब से अपने उसके हाथ को चाट रहा था. इट सीम्स वेरी नाइस टू हिम. इट्स स्मेल टेल. अब वो अपनी जो, और क्या कर रहा, जैसे वो उसको चाट रहा था, छोटी सी स्मेल के साथ वो छोटी सी स्मॉल सी जो उसकी टेल थी वो उसको कॉन्स्टेंटली हिला रहा था जब वो उसको दूध पिला रहा था. ठीक है. सो मिल्क वैनिश्ड इनटू द स्विरल एंड फॉर्म एंड ग्रिगलिंग. और वो धीरे धीरे जो दूध है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे पूरे इसमें चैप्टर में क्या पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो पैनी है, जो जॉडी के फादर हैं, उन्होंने सांप को किल किया. क्लियर. और सॉरी, सांप ने उनको काट लिया और उसके बाद उन्होंने एक डो को किल कर दिया. और डो का जो बच्चा था वो उसे फॉरेस्ट में रह जाता है. तो जॉडी मिडविल के साथ वहाँ जाता है घोड़े पर बैठकर, लेकिन वो मिडविल को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता, बिकॉज ही डोंट वांट टू स्पॉइल हिज एन्जॉयमेंट इन द सर्चिंग ऑफ फैट. ओके. फाइनली वो उसको ढूंढ लेता है और वो जैसे घर में लेके आता है तो वो जो डियर है वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है, वो जो फ़ोन है, क्योंकि वो उसको उठाता है, फिर जैसे वो थोड़ा सा नीचे छोड़ता है, फिर उसको फिर उठा लेता है, फिर नीचे छोड़ता है, तो एक कनेक्शन दोनों के बीच में बन जाता है. एंड फाइनली जब वो उसको घर लेके आते हैं तो उसको अपने हाथ से हाथ दूध में डुबो के वो उसको दूध पिला रहा होता है. सो इस तरीके से दोनों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है. एंड फादर वॉज हैप्पी दैट फाइनली ही वॉज एबल टू फाइंड हिम. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न
दोन फादर को लगता है कि हम जो उसने अगर उसको डो को किल कर दिया था जिसके कारण से वो बच्चा अकेला रह गया था, नाउ ही इज़ हैविंग अ फैमिली एंड नाउ ही वाज सेफ एंड सिक्योर। क्लियर? सो दिस इज़ सो वो जो फॉन है वो बिलोंग करता था जोडी को, क्योंकि वो जोडी के चारों तरफ ही रहता था हमेशा। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू completely understand this. Thank you.